Good afternoon, students. Okay, Jennifer, can you please tell all the students to come online so that I can start my lecture? Hmm? Okay, before before I start, just let me know if you can hear my voice loud and clear. Very good afternoon, Nimra. बस वो जरा अटेंडेंस शीट सेकेंड ईयर की अटेंडेंस शीट पर ला दो मुझे। हाँ, वहाँ वहाँ होगी। महा को कह दो। हाँ, बस और कोई नहीं। मिस वेदर का है, ऑफिस में नहीं है, जरा पता करो। और मुझे सेकेंड ईयर की शीट चाहिए। देखो कोई और तो नहीं ले रहा सेकेंड ईयर की क्लास, उससे शीट ला दो। Maniba. Okay, beta. How are you, ma'am? Thank you very much, beta. Yes, you can hear me loud and clear. Good. Okay, now let me start the lesson. Today we'll be studying about hemorrhoids. Okay, very common, very common problem. Okay, among human beings. So this is hemorrhoid. You can see the picture. Okay, if you see this picture, you can see that this hanging part is hemorrhoid. Okay, actually we'll see okay, what this hanging part is, right? So the objectives as usual, and now let's see. Hemorrhoids क्या कहते हैं? Hemorrhoids are dilated portion of the veins in the anal canal. वालेकुम सलाम। मैंने सारों को मैंने एक ही दफा कर दिया, अब मैं नहीं बार करूंगी। ओके, ठीक हो गया। सो दीज आर द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द veins in the anal canal. Now, if the picture you can see, here on the left side, right side or left side, right side, okay, you can see the blue part, the red part, pink part, these are actually the blood vessels. ठीक है, अब जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है and you give a force to defecate, so what happens, these veins, they become dilated, they become इनको भी पुश लग रहा होता, so what happens, they start dilating. ठीक है, डायलेट होना शुरू हो जाते हैं एंड देन दे कीप ऑन स्लिपिंग डाउन, नीचे स्लिप करते चले जाते हैं एंड देन दे बिकम्स अ फ्लावर. Okay, by the age of 50 or 50% of about 50% of hemorrhoids to some extent, ठीक है, अब यानी कि ये जो hemorrhoids है, it's not necessarily that it has to be age of 50, it can be less than 50 also, क्योंकि वो पेशेंट, वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की कंटिन्यू प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनको हेमरॉइड्स भी जल्दी हो जाते हैं, राइट. सो व्हाट हैपेंस के हेमरॉइड्स कैन बी in teenage as well. Increased pressure in the hemorrhoidal tissue due to pregnancy may initiate hemorrhoid or aggravate existing ones. ठीक है, एक तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है किसी को, लेकिन क्या होता है कि ये एग्रीवेट कर देते हैं इनको और, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, दे आर कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स और हार्ड स्टूल्स, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन they give a push, these dilated veins, they start slipping down and then they give aggravate the other ones as well. ठीक हो गया. सो कोशिश करो कि आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन नॉर्मलीज आर वेरी पेनफुल, ठीक है. अगर आप कभी किसी से पूछो, पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम हेमरॉइड्स, आस्क देम, इट्स रियली पेनफुल प्रॉब्लम.
They are classified as one of the two types. ठीक है, they are classified as one of the two types. एक तो है internal, एक है external. Now look at the picture. The internal hemorrhoid, they are here. ठीक है, so this area अगर constipated stool है will give pressure on the internal ones. ठीक है, and the one is external, they are already at the outside. So ये जो internal है और जो external है ये सारे क्या हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाए, ये इनको प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, एग्रीवेट द एग्जिस्टिंग वंस. ओके. Okay, the above internal sphincter are called internal hemorrhoids. आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही कि कम आ रही है? खानसा बीबी, तुझे आवाज आ रही है मेरी? मैंने फुल किया हुआ, ठीक है क्या? सो हेमरॉइड्स आर क्लासिफाइड, जो इंटरनल स्फिंक्टर है दे आर कॉल्ड इंटरनल हेमरॉइड्स, और जो आउटसाइड है दे आर नोन एज एक्सटर्नल हेमरॉइड्स. ठीक है, जो एक्सटर्नल साइड पे अपियरिंग आउटसाइड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर से बाहर है दे आर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, जो स्फिंक्टर मसल्स के अंदर है दे आर इंटरनल हेमरॉइड्स. ठीक है क्या? हियर कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? Shearing of the mucosa during defecation results in the sliding of the structure in the walls of the anal canal. ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ द म्यूकस, जो जो है ना इसका म्यूकस, ठीक है, वो डेफिकेशन के दौरान में क्या हो रहा है, दे दे स्लाइड द स्ट्रक्चर्स इन द वॉल्स. ठीक है, ये आपका एनल कैनाल है और क्या होता है कि ये लुब्रिकेट हो जाता है एक तरीके से during defecation. So it shares of the mucus during the result. Okay, increased pressure in the hemorrhoidal tissue due to pregnancy may initiate hemorrhoids or aggravate the existing ones. Now what happens कि ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके अंदर जो कॉज है, तो प्रेगनेंसी में भी ये प्रेगनेंसी का भी एक वजह बनती है. और इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, द बेबी वन पिक्चर, ठीक है, अब ये पीछे आपको ये ब्लैक कलर का ये स्टूल नजर आ रहा है. ठीक है, ये इम्पैक्ट स्टूल है. ये इम्पैक्ट स्टूल मीन्स कि अभी इसको अभी ये बेबी का हेड है, इसने इस कैनाल से बाहर आना है. सो इट इज बिल्कुल साथ साथ ही है, इसका प्रेशर पड़ेगा, बेबी के हेड का प्रेशर पड़ेगा. तो क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट इनिटेट्स द हेमरॉइड्स, या फिर क्या करता है, ये एग्रीवेट करता है आपके एग्जिस्टिंग वन को. अब यहाँ पर अंदर की तरफ क्या हो सकता है, अंदर की तरफ यहाँ पे कोई पॉलिप होगा जो कि क्या हो जाएगा, एग्रीवेट हो जाएगा, या फिर वो उसको इनिटेट करेगा, यानी कि इनिशिएट करेगा कि किसी तरीके से. सो ये प्रेशर पड़ने से भी क्या बन जाता है, हेमरॉइड्स होना शुरू हो जाते हैं. So that becomes that causes hemorrhoids. साइन सिम्टम्स में क्या होगा कि जिनको हेमरॉइड्स हो रहे हैं, इचिंग एंड पेन. अब इचिंग एंड पेन में क्या होता है कि बाज़-औक़ात ये लोग जो है वो पीठ खुजलना शुरू कर देते हैं, खूब इचिंग हो रही है, उनको अब ये नहीं पता कि इचिंग क्यों हो रही है. ठीक है, और साथ साथ उनके पेन भी हो रही है. तो जब वो इच करते हैं तो वो ब्लीड कर सकते हैं, या वो जब डेफिकेट करते हैं तो इट कैन ब्लीड. ठीक है, अब उसकी निशानी क्या होगी, इट विल बी ब्राइट रेड ब्लीडिंग. ब्राइट रेड मीन्स
आपको उसको एकदम जैसे हम क्या मेलिना देखते हैं तो क्या समझते हैं कि शायद कहीं रेक्टल ब्लीडिंग हो रही। नो, इट्स नॉट द रेक्टल ब्लीडिंग, इट्स द पॉलिप जो हैंग आउट हो गए हैं, ठीक है, वो बर्स्ट हो जाते हैं और उसकी ब्लीडिंग होती है। तो उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल ब्राइट रेड होगी, दैट इज फ्रेश ब्लीडिंग। मेलिना में इट्स नॉट अ वेरी फ्रेश ब्लीडिंग, आपको उसके अंदर ब्लैक स्टूल मिलेगा तो वो पता लगता है कि भी इंटरनल कहीं पे ब्लीड कर रहा है। लेकिन जो हेमरॉइड्स के हैं, इट विल बी वेरी ब्राइट रेड कलर का, ठीक है, फ्रेश ब्लीड पर। नाउ कम्स द हम इंटरनल और एक्सटर्नल को देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या होगा, ठीक है, उसके साइन सिम्टम्स में। अब जो एक्सटर्नल बाहर की तरफ है वो दे आर एसोसिएटेड विद severe pain from the inflammation and edema caused by thrombosis. For example, clotting of blood within the hemorrhoids. अब ये पेन इतना ज्यादा क्यों है? Because it's external and if you sit somewhere तो वो definitely वो पेनफुल होगा, ठीक है। या फिर अगर आप कहीं बैठते हो और आपको झटके लगते हैं, इट कैन बी वेरी पेनफुल, राइट। सो एडिमा भी है, इन्फ्लामेशन भी है, तो पेन तो डेफिनेटली होगा। इस्कीमिया ऑफ द एरिया, इस्कीमिया क्यों हो रहा है? इस्कीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एरिया है वहां से क्या हो रहा है उसको जो हेमरॉइड्स का उसमें एक तो एरिया ब्लीडिंग की वजह से वहाँ से कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सर्कुलेशन पूरी ठीक तरीके से नहीं जा रही, तो इस्कीमिया हो सकता है। इंटरनल हेमरॉइड्स में क्या होगा? दे आर नॉट यूजली पेनफुल until they bleed or collapse when they become enlarged, ठीक है। अब जो इंटरनल है वो इतना पेनफुल नहीं है, तो वो छुपा हुआ है, उसको कोई तकलीफ कोई झटके नहीं लग रहे। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं बड़े हो जाए थोड़े से, ठीक है, और जो प्रोलैप्स होना शुरू हो जाए, प्रोलैप्स का मतलब हैंग होना शुरू हो जाए, तो फिर क्या है कि वो ब्लीड भी कर सकते हैं और मजीद एनलार्ज हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल, बहुत ज्यादा जोर लगाना, ठीक है, उसकी वजह से ये सारा होता है। हाउ विल यू मैनेज इट? ठीक है, नाउ विल सी कि हाउ डू वी मैनेज इट। हेमरॉइड सिम्टम्स एंड discomfort can be relieved by good personal hygiene and by avoiding excessive straining during defecation, राइट। अब क्या है इसके सिम्टम्स और डिस्कम्फर्ट जो है उसको आप एक अच्छे तरीके से रिलीव कर सकते हो। सबसे पहली बात कि अपनी पर्सनल हाइजीन रखो, बहुत जरूरी है पर्सनल हाइजीन रखना। यानी ऊपर ऊपर से हम पानी मार के साफ कर देते हैं, जबकि वो पॉलिप्स जो हैं वो गुच्छा बने होते हैं और उसके अंदर से भी वो गंदा गंदा हो सकता है। सो यू नीड टू वॉश इट वेरी नाइसली, ठीक है। यूज योर हैंड, बाद में हाथ धो लेना, लेकिन उसको अपने एरिया को साफ सुथरा रखो। एक दूसरा उसने कहा है एक्सेसिव स्ट्रेनिंग। अभी कोमोड पे बैठ के या नीचे बैठ के पंखा को जोर लगाते चले जाओ तो उससे भी क्या है स्ट्रेन पड़ता है। बहुत जोर लगाते जा रहे हो, बहुत ज्यादा आप करोगे तो क्या है स्ट्रेन पड़ने से पॉलिप्स को और आप क्या कर रहे हो उसको पुश कर रहे हो, ठीक है। A high residual diet that contains fruit and bran along with an increased fluid intake. ये जो आप पास्ता वगैरह खाते हो, पिज्जा खाते हो, सारी मैदे की चीजें खाते हो, इनसे अमूमन ज्यादातर क्या हो जाता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। ये डबल रोटी जो है वो सारी क्या है अंदर जाके जम जाती है, ठीक है। तो फिर वो जो जमा हुआ है तो फिर वो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल कर देता है।
तो आपने क्या करना है, यू नीड टू टेक अ हाई फाइबर डाइट। आपको फाइबर डाइट लेनी है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो। उसमें क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट होने के साथ साथ आप स्टूल आराम से कर सकते हो। सो हाई रेजिडुअल डाइट दैट कंटेन्स फ्रूट एंड ग्रान along with increased fluid intake। वो लोग जो पानी बहुत कम कम पीते हैं ना, उनका भी सबसे बड़ा कॉज बन जाता है इसका। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है कॉन्स्टिपेशन का। आपने क्या करना है, हाई रेजिडुअल डाइट के अलावा पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीने से आपका जो अंदर की आंतड़ियाँ हैं वो क्या है, सॉफ्ट रहती हैं। ठीक है, वरना क्या होता है कि ये पानी नहीं पियोगे तो क्या है, ये नरम नहीं होंगे। नरम नहीं होंगे, स्टूल आराम से पास नहीं होगा। सो ज़रूरी है। देन कम्स द वार्म कंप्रेसेस। कंप्रेसेस, वार्म कंप्रेसेस अगर आपने करना, वो छोटे बच्चों के लिए का ठीक रहता है। बड़े लोग जो हैं वो सिट्स बात लें, वो बहुत ठीक रहता है। ठीक है, सो सिट्स बात में क्या होता है, आप अपना वो क्या कहते हैं, बड़ा बेसन है, उसके अंदर आप पानी डालें, नीम जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, सिट डाउन दें, ताकि आपके हेमरॉइड्स को क्या है, थोड़ा सा टकोर मिले। हो गया। आप एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट्स हैं, सपोस्ट्रीज हैं, इसका इस्तेमाल करें। सपोस्ट्रीज इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टूल आराम से आ जाए, ज़्यादा एग्रीवेट ना करें तकलीफ को। राइट, सो ऑइंटमेंट है, आपका जो पेनफुल एरिया है, एम्ब्रॉयडरी क्रीम मिलते हैं, वो आप लगाएं, उससे आपका ये जो पेनफुल एरिया है वो नरम पड़ जाएगा। ठीक है, बेड रेस्ट अलाउज द एनगॉर्जमेंट टू सबसाइड। अब आप जब जोर लगाते चले जा रहे हो तो वो क्या हो रहे हैं, एनगॉर्ज होते जा रहे हैं और पेनफुल होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप आराम से लेट जाते हो, ठीक है, रेस्ट करते हो, तो यही एनगॉर्जमेंट क्या है, बाद में खुश हो जाता है। आसान लफ्जों में बता रही हूँ। ठीक है, वो जब खुश हो जाते हैं तो फिर वो क्या, इसका मतलब है थोड़े से सबसाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप गौर से देखो कि कैसे वो प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, प्रेशर पड़ने से क्या हो रहा है, वो इनकॉर्ज होता चला जा रहा है। राइट, लेकिन अगर आप प्रेशर जोर नहीं लगाओ, प्रेशर ना दो ज्यादा, आराम से उसको खुद से आने दो, तो बात फर्क हो जाती है, इतनी पेनफुल नहीं हो जाती। लेकिन जब आप वो पुश करते हो तो वो जो डायलेटेड वेन्स है वो और इनगॉर्ज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ज़्यादा इनगॉर्ज होते हैं फिर वो पेनफुल होते हैं और फट भी सकते हैं। ठीक है, बस्ट हो जाए फिर ब्लीडिंग होती है, समझ में। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल जब आप सर्जरी नहीं होती उसकी, इंफ्रा फोटोकोएगुलेशन, बाइपोलर डायथर्मिया, लेजर थेरेपी, ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप उसको बगैर ऑपरेशन किए काम कर सकते हो। इंफ्रारेड फोटोकोएगुलेशन में ये क्या करते हैं कि ये आप ये तस्वीर देख रहे हो, ठीक है, इसमें वो जो आपकी हेमरॉइड्स हैं उसकी कोएगुलेशन कर रहे हैं ताकि वो हैंग ऑन ना हो जाए ज़्यादा। बाइ बाइपोलर डायथर्मिया, उसको किस तरीके से आप उसके कम कर सकते हो वो देख रहे हैं कि उसमें ये लोग बाइपोलर बताए थर्मिया में क्या करते हैं, मुझे इसका नहीं पता। मैं अभी आपको बताती हूँ बाइपोलर।
ये जो है ना, ये आपके पास ये चिमटी किस्म की, जैसे आपके पास ट्वीजर है उस किस्म की चीज है। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि पेन लाइक डिवाइस है, और इलेक्ट्रिकली करंट पास करके उस टिश्यू को वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। थ्रू अदर टिश्यूज एंड माय बॉडी फोकस ऑन द टिश्यू इन कांटेक्ट, जो आपके बॉडी के टिश्यू के साथ है कांटेक्ट हो रहे हैं, ये उसके साथ। सो इट इज जस्ट लाइक अ पॉटरी, ठीक हो गया। लेजर थेरेपी में, इस लेजर थेरेपी में आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से कमर पे वो थोड़ा सा लेजर थेरेपी दे रहे हैं, इसी तरीके से ये हेमरॉइडल एरिया में भी कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जिकली इंटरनल हेमरॉइड्स इज रबर बैंड लाइगेशन प्रोसीजर। रबर बैंड, अब क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं, पॉलिप्स हैं सपोज, ठीक है, ये आपके सामने पॉलिप है, तो ये पॉलिप के यहाँ पर क्या करते हैं, एक पतला सा रबर बैंड सा जो है, ये हमारे नॉर्मल रबर बैंड्स नहीं होते, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ सर्जिकल रबर बैंड्स, जो कि यहाँ पे बांध दिए जाते हैं कॉर्नर पे। और बांधने से क्या होता है कि ये यहाँ पे सर्कुलेशन रुक गई, तो ये झड़ जाएगा, एंड देन देयर इज नो मोर पॉलिप, ठीक है। जो वेन है उसके कॉर्नर पे वो क्या करते हैं, रबर बैंड से बांध देते हैं। बांधने से क्या होता है कि यहाँ की सर्कुलेशन खत्म होती है, तो ये झड़ जाता है, गिर जाता है, और वहां से पॉलिप खत्म हो गया। एक तो वो इंटरनल हेमरॉइड्स के लिए ये जरूरी है। देन द हेमरॉइड इज विजुअलाइज्ड थ्रू एन ओनोस्कोप, its proximal portion above the mucocutaneous line is grasped with an instrument, ठीक है। अब इसी तरीके से वो क्या है, दूसरी तरीका है सर्जिकल का कि दे विजुलाइज फ्रॉम एन एनोस्कोप। एनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो एक स्कोप है जिसके थ्रू आप उसको देखते हैं पोर्शन को, और इंस्ट्रूमेंट से ही उसको ग्रास्प कर लेते हैं। A small rubber band is then slipped over the hemorrhoid. वो विजुलाइज करके, ठीक है, उन्होंने विजुलाइज किया, विजुलाइज करके ये स्कोप है, ठीक है, दिस इज द स्कोप, ये विजुलाइज करते हैं। और इसके आगे क्या है, एक रबर बैंड होता है जो कि स्लिप हो जाता है उस हेमरॉइड्स के ऊपर, और वो इस रबर बैंड को क्या कर देते हैं, उसके ऊपर, हेमरॉइड के ऊपर बांध देते हैं, बांध के और उसको छोड़ देते हैं। The distal to the rubber band becomes necrotic and after several days it sloughs off. वही मैंने जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो रबर बैंड बांधने से वो सारा जो हेमरॉइड का जो नेक्रोटिक पार्ट है, ठीक है, जाहिर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तो गई नहीं, तो वो क्या हो जाता है, स्लफ हो जाता है, गिर जाता है। Chirosurgical hemorrhoidectomy involves freezing the hemorrhoids for a sufficient time to cause necrosis, ठीक है। अब नेक्रोसिस करने के लिए वो क्या करते हैं, एक और तरीका है जिसको उन्होंने क्रायोसर्जिकल हेमरॉइडेक्टमी का है। उसमें वो क्या करते हैं, जो फ्रीजिंग, इट गिव्स अस फ्रीजिंग पॉइंट दे देते हैं सफिशिएंट टाइम के लिए। और सफिशिएंट टाइम क्या होता है, जिसमें कुछ देर तक रखे रखते हैं और वहां से सर्कुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। आपने कभी देखा है कि बर्फ को कितनी देर तक हाथ में पकड़ो, थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है हमारा हाथ सुन्न हो गया है ना, सुन्न हो जाता है। सुन्न क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी आर्टरीज वेन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लैप्स हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन खत्म हो जाती है, इसलिए वहाँ पे नमनेस होनी शुरू हो जाती है। फिर जब आप हाथ से गिरा दो और हाथ सेकते हो, हाथ रब करते हो, तो क्या है, वो वेन्स फिर से खुल जाती है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वो जब रब करते हैं तो खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, हम उनको जानबूझ के निक्रोस्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ की सर्कुलेशन जो है
वो बंद हो जाए। This procedure is not widely used because the discharge is very foul smelling and wound healing is prolonged. अब ये तरीका जो क्रायोसर्जिकल है, ये इतना कॉमन नहीं है, इसको लोग अवॉइड ही करते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, दूसरा इसकी बदबू बहुत ज्यादा है, राइट। और फिर इसके बाद ये जब ठीक होने लगता है तो वो बहुत देर लेता है, सो इट्स अ वेरी फाउल किस्म की स्मेल है इसकी, इसलिए ये प्रोसीजर ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। सो दिस ट्रीटमेंट द ट्रीटमेंट इज क्विक एंड रिलेटिवली पेनलेस, लेकिन ये जो है तरीका है, इट्स क्विक एंड रिलेटिवली पेनलेस। पेनलेस इसलिए क्योंकि वो सुन्न हो गया, अब उसको पता तो है नहीं कि क्या हो रहा है अंदर, ठीक है, इसलिए उनको पता ये वो इस प्रोसीजर को वो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। नाउ फॉर द नर्सिंग प्रोसेस आप क्या करते हो? फॉर द नर्सिंग प्रोसेस यू गो फॉर द असेसमेंट, ऑलवेज स्टार्ट विद द असेसमेंट, और असेसमेंट जो है वो क्या होगा? डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इचिंग, बर्निंग और पेन। मालूम करो उससे, पेशेंट से पता करो। लेट द पेशेंट स्पीक फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। आप उससे पूछो कि आपको ये जो खारिश हो रही है ये कब से हो रही है, कितनी होती है, ठीक है, और फिर उसमें बर्निंग सेंसेशन कितनी है, इसमें पेन कितना है। यू नीड टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग। डज इट अकर ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट? अब ये जो उन्होंने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स इचिंग, बर्निंग, पेन का, उसने कहा है कि क्या ये स्टूल पास करते वक्त होता है, ठीक है, ओके। हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? अब जब ये बर्निंग, इचिंग, बर्निंग और पेन जो है वो कितनी देर तक रहता है, राइट। फिर उसने पूछा इज एनी एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद इट? क्या आपके पेट में भी इसके साथ साथ दर्द होता है कि नहीं? Then does any bleeding occur from the rectum? क्या कभी रेक्टम से, ठीक है, ब्लीड हुआ कि नहीं हुआ? ये आप उसको असेसमेंट में पूछोगे। अब अगर ब्लीड हुआ तो कितना हुआ, कितनी देर बाद होता है, हाउ फ्रीक्वेंटली होता है, इज इट ब्राइट रेड, बहुत ज्यादा ब्राइट रेड है वो, तो आप उसको सारा ये बातें पूछोगे। फिर आप पूछोगे इज देयर एनी अदर डिस्चार्ज सच एज म्यूकस और पस, ठीक है। आप फिर साथ साथ ये भी पूछोगे क्या इसके अंदर से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि पस हो गया या म्यूकस हो गया, ठीक है। अब वो कहेगा मैं कहाँ देखता हूँ, गुड गुड क्वेश्चन, वो कहाँ देखता है इस चीज को? सो आप उसको पूछ सकते हो कि इज इट समथिंग यू फील स्टिकी, ठीक है, म्यूकस इज स्टिकी, ठीक है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इज इट स्टिकी और नॉट। एंड अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एलिमिनेशन पैटर्न एंड लैक्सेटिव्स यूज, डाइट हिस्ट्री। फिर पूछो कि किस किस्म की डाइट लेते हो, क्या चीज खाने में खाना पसंद करते हो, फ्रूट खाते हो? वो कहेगा नहीं, बोले बहुत बुरी बात है, खाना शुरू करो। वो कहेंगे आप रोटी में क्या खाते हो? वो कहेगा पास्ता खाता हूँ मैं, ये पिज्ज़ा खाता हूँ, डबल रोटी खाता हूँ। तो फिर ये क्या ये सब कुछ छोड़ो और कौन सा खाना खाओ, कौन सा खाना? छान भूरे का खाना। रोटी खाते हो, वो जो छान रोटी की छान निकलती है उसको छानो मत ज्यादा, ठीक है, वो छान भूरे की रोटी बना के खाओ, भूसा मत निकालो उसमें से, क्योंकि वही क्या है, फाइबर है सारी, और उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, बल्क बन जाता है, फिर वो आराम से निकल जाता है, लेकिन ये हार्ड स्टूल जो है ये कॉज करते हैं। तो इसमें देखो आप असेसमेंट में कितनी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो कि आप उससे पूछ रहे हो, ठीक है, बर्निंग, इचिंग और पेन से रिलेटेड आप उससे पूछ रहे हो, उसकी मूवमेंट से पूछ रहे हो, कब तक हो जाता है, ठीक है, कितनी फाइबर डाइट है, यस, ठीक है, छानपुरा इज ऑल द फाइबर डाइट, हम लोग वो निकाल निकाल के बात फेंकते हैं विच इज नॉट गुड, ठीक हो गया।
एंड देन हाउ डज इट लास्ट, कितनी देर तक वो रहता है, एब्डोमिनल पेन होती है कि नहीं होती है, और कभी रेक्टल ब्लीडिंग हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो वो किस किस्म की है, ठीक है, ब्राइट रेड है कि काले रंग की है कि पुरानी है, जो भी है आप उससे पूछोगे। कितनी है ज़्यादा, हाउ फ्रीक्वेंटली, एक दिन में अगर आपको कितनी दफ़ा आपको महसूस होता है कि आपको अर्ज हो रहा है, ठीक है। फिर ब्लीडिंग का हमने बात कर ली। फिर आप पूछोगे कि कोई और डिस्चार्ज भी होता है कि नहीं होता, सच एज उसने पास और म्यूकस के लिए पूछा, तो आप उसको आसान लफ्जों में, अब उसको सच पास और म्यूकस का तो पता नहीं होगा, ठीक है, तो क्या है कि आप उससे पूछ सकते हो कि जब आप स्टूल पास करते हो या आप नॉर्मली आपको कुछ चीज़ ऐसे स्टिकी सा फील होता है कि नहीं होता, राइट। कोई और, उसके बाद आपने उसकी खाने से रिलेटेड बात पूछ ली। लेग्जेटिव के लिए कि आप कोई लेग्जेटिव लेते हो कॉन्स्टिपेशन के लिए ताकि स्टूल आराम से आ जाए, ठीक है, तो ये आपने उससे पूछना। नाउ कम्स द डायग्नोसिस, आप डायग्नोस कैसे करोगे, ठीक है। डायग्नोसिस में आप कैसे डायग्नोस करोगे, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इग्नोरिंग द अर्ज और टू डेफिकेट बिकॉज ऑफ पेन ड्यूरिंग एलिमिनेशन एज एविडेंस, वो सारा कुछ बीच में ही आ गया, ठीक है। डायग्नोस आपको बना बनाया सारा मिल गया कि हाउ यू मेक द डायग्नोसिस। एंजाइटी है, जाहिर है कॉन्स्टिपेशन में अगर पेनफुल है तो एंजाइटी तो होगी। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेशन, प्रेशर, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पास डायग्नोसिस में आ गई हैं। प्लानिंग में इट्स ऑलवेज मेजर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप क्या करोगे, तो आप उसको एडिक्वेट एलिमिनेशन पैटर्न, रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, उसकी एंजाइटी दूर करोगे, उसकी पेन को दूर करोगे, प्रमोट करोगे उसके यूरिनरी एलिमिनेशन को, मैनेज करोगे थेराप्यूटिकली रेजिमेंट एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा कि आप थोड़े से थोड़े वक्त में आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हो। फिर लॉन्ग टर्म बीच में आ जाता है, तो आप उस लॉन्ग टर्म में क्या करोगे। लॉन्ग टर्म में हम उसको बताते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं, मेडिकेशन के बारे में बताते हैं, फॉलो अप के लिए बताते हैं, ठीक है। अगर सर्जरी होनी है तो हम उसके लिए उसको बताएंगे कि नेक्स्ट लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करेंगे, प्लान कर रहे हैं कि हम आपकी सर्जरी करवा दें, हेमोरेडिक करवा दें, जो कुछ भी है। नर्सिंग इंटरवेंशन में आपके नर्सिंग इंटरवेंशन में आप उसकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करोगे, एंजाइटी को रिड्यूस करोगे, पेन को रिलीव करोगे, ठीक है। यूरिनरी एलिमिनेशन को प्रमोट करोगे, मॉनिटर और मैनेज करोगे उसके कॉम्प्लिकेशन से। यूरिनरी एलिमिनेशन कैसे रिलेट होता है, ओके। यूरिनरी एलिमिनेशन में बाज़ औक़ात क्या होता है कि कॉन्स्टिपेटेड स्टूल जो है वो, ये देखो ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, और आपका रेक्टम है, ये सारे आस पड़ोस की चीज़ें हैं, राइट। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है तो उसने क्या किया है, आपके यूरिथ्रल एरिया को, जो यूरिटर्स है उस एरिया को उसने धक्का मार के टाइट कर दिया, तो अब यूरिन नहीं आ रहा। समझ में आया ना, क्या पकड़ा, कोई नहीं पेन मेरे पास। तो ये एक कैनाल है आपका यूरिनरी पैसेज का, और इसके पीछे, ठीक है, ये इसके पीछे है आपका रेक्टम, ठीक हो गया, आगे पीछे ये यूरिथ्रल एरिया आपका, ये आपका यूरिनरी एरिया है, और ये आपका स्टूल एरिया है,
आगे पीछे है, राइट। अब क्या होता है, बाज़ औक़ात आपके जो रेक्टम इतना फुल है कि इसने क्या किया, इसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। जब इसने इसको सप्रेस कर दिया तो यूरिन फ्लो होने के बजाय पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि यहाँ से उसने अब क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनियस पार्ट ही है ना, तो क्या करते हैं कि ये इतना ज़्यादा है कि ये इसको पुश करेगा तो ये यहाँ से ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ब्लॉकेज हो गया तो यूरिन नहीं आएगा। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कि आप पॉटी करने बैठते हो तो फिर उसके बाद साथ ही आपका यूरिन भी आ जाता है ना। तो यही वजह बनता है उसमें कि आपने स्टूल स्टूल पास करने के लिए, स्टूल तो पास नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसने यूरिनरी पैसेज को भी रोक दिया। ओके, एंड देन मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशंस, ये हमने देख लिया। वैल्यूएशन में आप क्या वैल्यू, बेटा मारिया ये कौन थी बच्ची? ओके, सारा मोरिस, बेटा आपको समझ में आ गई? मुझे लिख के बताओ कि अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, कि कैसे रिलेट होता है। तो अगर आपकी समझ में आ गया तो गुड इनफ। ओके, नाउ कम्स दी वैल्यूएशन, आपके पेशेंट की एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। ओके, attain a normal pattern of elimination. How will you obtain the normal pattern? You will set aside a time for defecation. ओके बेटा, थैंक यू। आपको अगर समझ में आ गई तो दैट्स बेस्ट। राबिया, यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। समझने की बात है, अगर आपकी समझ में आ गई है तो गुड इनफ, अगर नहीं आई है तो बेटा मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगी, बट डोंट टोंट अदर्स, ठीक है। अब अगर उसकी समझ में नहीं आई है तो शी हैज अ फुल राइट टू आस्क मी। ओके, now attain a normal pattern of elimination. How will you attain a normal pattern? होता ऐसे है कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने अपना टाइम फिक्स किया। अपना टाइम आपको खुद से फिक्स करना होता है, और आप देखना कि तीन दफ़ा अगर आपने अपना कर लिया तो फिर नॉर्मली आपको अपना टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली उसी सेम टाइम पे आपको डेफिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात लोग जो है खाना खाने के बाद फ़ौरन वॉशरूम चले जाते हैं। कुछ लोग सुबह जैसे उठते हैं फ़ौरन डेफिकेट करते हैं। कुछ लोग खाने के बाद डेफिकेट करते हैं। कुछ लोग खाने से पहले का टाइम होता है, उनका टाइम खुद ब खुद ही से सेट हो गया। यानी कि हो सकता है वो हमेशा से उसी टाइम पे जाते हैं वॉशरूम, तो वो क्या उसी टाइम पर आना शुरू हो जाता है सुबह। और सुबह मुँह हाथ धोने लगे हैं, साथ ही हमें वो पॉटी आ गया, चलो जना भागो, ठीक है। सो ये आप लोग क्या करते हैं, यू अटेन अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ, और दिन में एक दफ़ा होता है, बाज़ लोगों को दिन में 2 दफ़ा डेफिकेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सो इट इज़ ऑल on your timings. Respond to the urge to defecate and take time to sit on the toilet and try to defecate. अपने आप को आदत बनाने के लिए कि ये टाइम मेरा सबसे बेस्ट है, ठीक है, ना कॉलेज जाने से पहले का है ना कॉलेज जाने से एंड टाइम पर है। आप अपना कुछ देर वहाँ पे क्या करते हो, यू रिस्पॉन्ड टू सिट फॉर सम टाइम, ठीक है, और अर्ज करते हो कि वो डेफिकेट हो जाए। रोज इस टाइम पे बैठो, फिर आपका टाइम सेट हो जाता है, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू प्लान टू गो फॉर योर टाइमिंग्स, अटेन नॉर्मल पैटर्न को आप अटेन करते हो। रिलैक्स करते हो, एक्सरसाइज करते हो एज यूजुअल, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 2 लीटर्स पर डे। 2 लीटर्स तो आपने हर हाल में पानी का
सारे दिन में पीना है। तो क्या होता है कि आपके और खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप थोड़ा सा पानी पी लेते हो तो क्या होता है कि जब खाना खाते हो तो वो जल्दी ड्रेन हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपका खाना वहीं पे जमा रहता है और ऊपर से पानी पी लेते हो, ठीक है, फिर वो पानी ऊपर तैरता रहता है, उसको हल होने में टाइम लगता है। सो अगर आप खाने से आधे घंटा पहले 15 मिनट पहले पानी पी लेते हो और बाद में खाना खाते हो तो क्या होता है कि खाना जल्दी ड्रेन हो जाता है, बजाय इसके कि आपकी टमी में खड़ा रह जाए। थोड़ा सा पानी भी मिल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं होता है। थोड़ा सा अपने खाने में हाई फाइबर डाइट मिला लो, राइट। एंड देन रिपोर्ट पैसेज ऑफ सॉफ्ट फॉर्म स्टूल। अगर आपके पास स्टूल आपका सॉफ्ट है, फॉर्म्ड है, तो आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। आप एक दफ़ा ज़रूर बताएं कि आपको नॉर्मल स्टूल आया है, इट वॉजंट हार्ड, कुछ भी नहीं, नॉर्मल था, ठीक है। डिक्रीज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अब इसमें आपने रिपोर्ट करना है कि पहले दर्द होता था पेट में, लेकिन अब पेट में दर्द नहीं होता। ये है वैल्यूएशन, इंटरवेंशन वैल्यूएशन टेरो, ये आपकी वैल्यूएशन है, ठीक है। ये रिपोर्ट करना, बताना कि अभी कैसा है कैसा नहीं है। तो जब ये चीज़ें आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से बता देते हो तो क्या होता है कि आपका वैल्यूएशन में ठीक हो जाता है। इज लेस एंक्शियस रिपोर्ट, ठीक है। ये यहाँ तक था आपका पास। ये एक नंबर 1 था आपके पास नॉर्मल पैटर्न। अब नेक्स्ट नंबर 2 है आपके पास लेस एंक्शियस। आपने बताना है कि वैल्यूएशन में कि पहले आप एंक्शियस थे, ठीक है, अब आप ज़्यादा एंक्शियस नहीं हो। हैज़ पेन, लेस पेन, ठीक है। वैल्यूएशन में आपने पेशेंट ने आपको बताया कि अब उसको पेन भी कम है। मॉडिफाइज बॉडी पोजीशन एंड एक्टिविटीज टू मिनिमाइज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। मॉडिफाइज बॉडी पोजीशन एंड एक्टिविटीज टू मिन, आप अपने बॉडी को मॉडिफाई करोगे लेस पेन के लिए। एक पोजीशन, आप अजीब किस्म की पोजीशन में बैठ जाओ, ठीक है, झुके हुए और कुबे हुए पोजीशन में बैठे रहोगे तो क्या है, खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने थोड़ी सी उठ के चल फिरना है ताकि आपका खाना अच्छे तरीके से हजम हो जाए। उससे क्या होगा, आपकी पेन भी कम होगी और जो डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी सी जो है, वो भी कम रहेगी। Apply warmth or cold to anorectal area. Now hemorrhoids, अगर आपके hemorrhoids, sitz bath means warm water bath, yes, ठीक है। warm water bath नहीं है, it's sitz bath is you take a basin, ठीक है, और टब जिसमें आप बैठ सको, इतना कि आपकी उसमें पिठी डिप हो जाए, समझ में आई। तो आप उसके अंदर, हम लोग अपने पेशेंट्स को थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसके अंदर पीपी लोशन डाल के देते होते थे, पोटेशियम परमैंगनेट का, वो डाल के नीम गर्म पानी में, और क्या कहते हैं उसमें हम पेशेंट्स को कहते होते थे सिट्स बात ले लें। सिट्स बात, आप सिट से याद रखो ना, ऐसा ही जी को मत देखो, अब देखो आप SIT को देख लो, ठीक है। तो आप सिर्फ बात देते हो, उसमें जो है, जो पेन है आपके रेक्टम में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हेमरॉइड्स की वजह से जो दर्द हो रही है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, राइट। ओके, अवॉइड्स विदाउट डिफिकल्टी। पेशेंट आपको एवेल्युएशन में पेशेंट विल वर्बलाइज, विल टेल यू दैट he does not have any pain when urinating, ठीक है, बगैर किसी दिक्कत के उसने यूरिन पास कर लिया।
एडहेयर टू थेराप्यूटिक रेजिमेंट को वो कैसे लेगा? कीप्स पेरिनियल एरिया ड्राई, यानी गीला गीला वॉश करके आया और गीला गीला नहीं, उसको आप अच्छे तरीके से क्लीन टॉवल के साथ जो है वो लेदर टॉवल रखो, ठीक है? उसको आप अपने मुंह साफ करने के लिए नहीं रखना, लेदर टॉवल साफ, या बाजुकात वो स्मॉल वॉश क्लॉथ्स मिलते हैं, ठीक है? स्मॉल टॉवल्स जिसको हम वॉश क्लॉथ कहते हैं, ठीक है? वो आप अपने पास 3-4 रखो ताकि धोने के बाद आपके पास ड्राई मौजूद हो, उससे ड्राई कर लो। आजकल टिश्यू है, टिश्यू को भी यूज कर सकते हैं ड्राई करने के लिए। कीप द एरिया पेरिनियल एरिया ड्राई। ईट बल्क फॉर्मिंग फूड। बल्क फॉर्मिंग फूड हमारा फाइबर डाइट है। आपका जो फाइबर डाइट है वो बल्क फॉर्मिंग है, ठीक है? वो बल्क सा बन जाता है बट इट्स नॉट हार्ड। हम मैदे की चीजें खाते हैं, दैट्स हार्ड, ठीक है? वो कॉन्स्टिपेटेड कर देते हैं, वो उस किस्म के। ये डबल रोटी जो है ये है ऐसी चीज है, ठीक है? सो अगर ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड इज फाइबर ब्रेड, उसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, तो दैट यू कैन यूज, ठीक है? अदरवाइज आप बाजार से वो जो सीरियल मिलता है वीटाबिक्स वगैरह, दैट्स ऑल फाइबर डाइट। Okay, has a soft form stool and regular. This is something what the patient is saying on the day of discharge or at the end of the treatment. जब आप evaluate करते हो तो वो आपको ये सारी चीजें बताएगा। Exhibit no evidence of complication. अब आप उसको, आपको उसके अंदर कोई complication नजर नहीं आ रही, कोशिश करते हैं कि constipation ना हो, ठीक है? कोई सबूत नहीं है कि अभी ये इसको कॉन्स्टिपेशन है। हैज क्लीन इंसिजन। अगर इसकी हेमरॉइडेक्टमी हो गई है और आपने उसको चेक किया है तो इंसिजन एरिया जो है वो बिल्कुल साफ है। देयर इज नो इन्फेक्शन और नथिंग एल्स, इट्स क्लीन एंड ड्राई। हैज नो नॉर्मल, हैज अ नॉर्मल वाइटल साइन, ठीक है? नॉर्मल वाइटल साइन में एंशियस होने की वजह से हो सकता है ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए, ठीक है? फीवर हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाए, सो कुछ भी नहीं है एंड ही हैज अ नॉर्मल वाइटल साइंस। उसके बाद शो नो साइंस ऑफ हेमरेज, ठीक है? कोई उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई रेक्टल ब्लीडिंग नहीं है, ही इज ऑल क्लीन एंड ड्राई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेमरॉइड, राइट? अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, जस्ट टू लेट मी नो कि आपको ये बात समझ में नहीं आई है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक हो गया? समझ में आ गया सारा कुछ? कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आई, बेटा आई एम हियर, ठीक है? सो जब तक आप I'll send you this presentation so that you can read it again and again and then it's not difficult, ठीक है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपकी रोजमर्रा की बात है और आप रोज पोटी करते हो, आप लोगों को पता है। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड ना करो, ठीक? गुड हो गया। अब मैं आप लोगों की वो अटेंडेंस लेती हूँ and take care of yourself and don't get constipated.